Okay, so today our topic is economic sectors. Let's have a quick overview of the lesson objectives. By the end of this lesson, you will be able to identify the three sectors of the economy. You will be able to understand developed, developing and less developed economies. ठीक है, इसमें हम countries की example देखेंगे. Explain the meaning of economic systems. ठीक है, ये पे हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी. Free market plan next. Understand the roles of private and public sectors. इसको हमने lesson 1 में भी touch किया था. So ये उसी की extension है. And then you will be able to define privatization and nationalization. Nationalization मैंने bracket में से लिखी है क्योंकि mostly exam के point of view से privatization is more important और वो books में भी ज़्यादातर privatization पे ही priority दी जाती है. All right, so let's have a quick recap. This is what we did in our first lesson. So you all know that what is private sector and what is public sector, right? अच्छा, अब now this classification is on ownership, कि ownership किस तरह की होती है, ठीक है? अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के ऊपर classifications करनी है. तो ये हम एक business को ownership के through classify करें, private and public में वो आती है, ठीक है? So remember we discussed about private sector, that it is owned by individuals and their aim is profit, like private shops, restaurants or private schools. And public sector में remember we discussed कि ये government own करती है and usually government ये welfare of the people के लिए, welfare of the society, welfare of the community अपनी country के लिए करती है to provide services. And examples are government hospitals, public schools, ठीक है, railways. But this classification, what you need to understand is कि ये business की classification ownership के ऊपर है, ठीक है? Now we are going to talk about the classification on types of activity. किस type की activity होती है business में? It is known as the sectors of industry or economic sectors इसको कहते हैं, ठीक है? जो chapter का हमारा name है economic sectors. What is it? कि आपके sectors of industry क्या है? Type of activity. Economic sectors आपके कौन से हैं business में, right? All right. So there are three types of sectors based on types of activity. ठीक है, उसके अंदर क्या activity हो रही होती है? Primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So there is a table in front of you, and basically primary sector में ये होता है कि when you extract the earth's natural resources, ठीक है? जैसे कि cotton, वो वाला business जिस तरह cotton fields होती हैं, fishing industry, mining आप extract करते हो, ठीक है? Forestry, ठीक है? So these are all examples of primary sector businesses. और इसमें further हम detail में examples discuss कर लेते हैं, like cotton farms in Punjab, fishing industry in Karachi, ठीक है? You all know कि कराची में sea port है, Arabian Sea, so fishing वहाँ पे. और Punjab is famous for its fields, ठीक है? So a lot of cotton farms in Punjab and sugarcane भी आती है. So rice, ये सारी चीजें आती है, ठीक है? So petroleum, oil and gas extraction या forest areas in KPK, ठीक है? आपको वहां से क्या मिलता है? Timber, wood. तो ये सारी आपकी प्राइमरी सेक्टर के बिजनेसेस हैं क्योंकि इनकी टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है? दैट यू आर एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर के बिजनेसेस कैसे होते हैं? जिसमें वो वाली बिजनेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है? वो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज या बिजनेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग हो रही होती है. इट कुड बी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्लोथिंग की हो रही है या कंस्ट्रक्शन की हो रही है, वो सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है? सो सम एग्जांपल्स कुड बी लाइक गुल अहमद, खादी और नेस्ले पाकिस्तान, अगर हम फूड की तरफ जाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो आवर थर्ड सेक्टर इज द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर का बिजनेस क्या होता है? दे प्रोवाइड सर्विसेज like banking, like teaching, like transport services, ठीक है? Education, I just told you teaching, ठीक है? Healthcare, hospitals वगैरह, ये सारे service based industries हैं, ठीक है? So this is the tertiary sector. So I've given you some examples. Mizan Bank, TCS हो गया, Kareem हो गया, PIA हो गया. If you are traveling, transport from one place to another, ये सारी services हैं, ठीक है? बैंक पे आपको सर्विसेज देते हैं. टीसीएस क्या है? कोरियर सर्विस है. सो
पोस्टल आपका जो है ये सब सर्विस सेक्टर है. सो दिस इज अ टर्शरी सेक्टर. I hope now this is clear. कि based on activity, there are three types of economic sectors: primary, secondary, and tertiary. And I hope that you know you understand the difference between all three of them. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर, रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर, अपने जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर था उसमें वी टॉक्ड अबाउट एडिंग वैल्यू टू समथिंग. Secondary sector is just like that you turn raw materials into useful products, like you add value to it, and वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा आप उसको, जिस तरह रिमेंबर वी डिस्कस्ड एन एग्जांपल कि आप अगर मिठाई की शॉप है, आप उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दो, उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी कर दो. सो ये सारी यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू इट. ठीक है. So this is the secondary sector. Then we have the tertiary sector. You all know it. मैंने अभी बताया आपको that it provides services to businesses and consumers. All right. Now let's look at an example. Primary sector, just like a farmer in Punjab, he grows cotton. Secondary sector, जैसे उसको add value करना हो तो yeah. So always remember that ownership. I'm going to share the slides with you, तो आपको फिर कोई difficulty ना हो. All right. So always remember that ownership tells us who owns the business, while economic sectors tells us what the business does. ठीक है? In easier words, ये बहुत अच्छी explanation है that ownership will tell that who owns the business. ठीक है? While economic sectors will tell what the business does. ठीक है? So now let us move on. Okay, now what is the importance of these economic sectors? ये primary, secondary, tertiary जो sectors हैं, इनकी क्या importance है? ये क्यों है? So now these sectors tell us how the economy works. They explain how goods and services are produced in a country. ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है या कैसे हो रही है. ये सारा आपको पता लग जाएगा इकोनॉमिक सेक्टर से. Now these sectors they depend on each other. I already gave you an example कि अगर कॉटन आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से तो सेकेंडरी सेक्टर में वो वही एड वैल्यू करके आप उसको क्लॉथ में टर्न करोगे या फैब्रिक में टर्न करोगे. So these sectors, all of them, they rely on each other. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है. और थर्ड सेक्टर टर्शरी वो भी डिपेंडेंट है. सेकंड सेक्टर के क्लॉथ आएगा तो फिर रिटेल शॉप्स उसको बेचेंगी, तो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगी. So they are dependent on each other. Okay, the third one, they create jobs. ठीक है. Now what happens? Now अब हमारे पास different sectors and different businesses and different industries. So what happens? They provide employment and farming. आपको farming में भी job मिल सकती है, manufacturing में मिल सकती है, services में मिल सकती है. So it is good for the country. Okay. It also supports economic growth. A strong economy has all three sectors well developed. ठीक है. आपको कैसे पता लगेगा कि एक country की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में क्या होगा? All three sectors will be very well developed. ठीक है. We are going to look at some examples further on. Now which increases national income and development. आपके जितने sectors अच्छे होंगे, ठीक है, जितने developed होंगे उतनी अच्छी इकोनॉमी होगी आपकी, आपकी नेशनल इनकम अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी. And help government planning. Now what happens is that governments they use, ये स्लाइड्स को ना मैं आपके लिए, आई थिंक ये थोड़ा सा टेक्स्ट इससे नीचे जा रहा है. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द स्लाइड्स, तो आई विल मेक श्योर कि ये ऊपर आ जाए. ये क्यों नीचे जा रहा है? ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ. Let's move this here. Okay. So it helps in government in planning. Governments use sector information. ठीक है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट को जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा जी हमारा ज्यादा काम इस इंडस्ट्री में हो रहा है या ज्यादा काम उधर हो रहा है, यहाँ पे हमारा वीक एरिया इसको हमने और स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर इधर बजट ज्यादा है, यहाँ पे बजट कम है. सो इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग डिसीजंस आल्सो. ठीक है, गवर्नमेंट प्लानिंग में भी हेल्प करती है ये. Now economic development types. अब हम कुछ countries की बात. Okay, now we are going to talk about the economic development types. अब types, पहले हमने economic sectors को based on their activity कि वो क्या करते हैं, what do businesses do, उसके ऊपर classify किया था. अब हम ये एक type discuss कर रहे हैं कि development
की टाइप क्या होती है, इसमें हम कंट्रीज की एग्जांपल्स लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? वो वाली कंट्रीज जिसमें दे हैव वेरी हाई इनकम एंड उनकी हाई लिविंग स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। एग्जांपल्स कुड बी यूएसए, यूके, जापान। उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है उनके पास। एंड इनका जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर है ना, वो टर्शरी सेक्टर है, सर्विसेज के ऊपर इनका ज्यादा बेस्ड है। लाइक पाकिस्तान का आप देखिए, ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। प्राइमरी में कॉटन वगैरह, आप फिशिंग है, ये सब कुछ है। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। वी हैव फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। बट अमेरिका में वो प्रोडक्शन की तरफ नहीं है, वो सर्विसेज की तरफ ज्यादा है। बिकॉज उनका वो वाला लेवल, दे हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड दैट, नाउ दे आर टुवर्ड्स सर्विसेज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर ऑल सर्विसेज। आईटी की तरफ बहुत जा रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, वो सबसे बड़ी है इस वाले डेवलप्ड इकोनॉमी में। और उसकी एग्जांपल यूएसए, यूके एंड जापान है। दे हैव हाई एजुकेशन, हेल्थ केयर लेवल्स उनकी बहुत ज्यादा है। ओके, द सेकंड टाइप इज डेवलपिंग इकोनॉमी। सो डेवलपिंग से क्या समझ आती है आपको? कि अभी ये पूरे डेवलप नहीं है, दे आर डेवलपिंग, ठीक है। लाइक कंट्रीज विथ मीडियम इनकम लेवल्स, ठीक है, दे रिलाई मोर ऑन द प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली एग्रीकल्चर। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हम लोगों का एग्रीकल्चर पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उसी से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। सेकेंडरी सेक्टर इसमें सबसे इज ग्रोइंग, ठीक है। मैंने आपको कहा बेसिकली ये प्राइमरी है, लेकिन दे मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। वी आर ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज और बन रही है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वी आर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, आपकी एजुकेशन, आप हेल्थ केयर आप इम्प्रूव कर रहे हो। अनदर एग्जाम्पल कुड बी इंडिया एंड बांग्लादेश अदर देन पाकिस्तान, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट डू यू थिंक थर्ड टाइप क्या होगी? लेट्स सी थर्ड टाइप क्या होती है। सो थर्ड टाइप इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अंडर डेवलप्ड क्या हो सकती है? अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे तो वेरी लो इनकम, बिल्कुल पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, दे हैव वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियसली जब उनके पास कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो फिर जॉब्स भी नहीं क्रिएट होती। सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी, गुर्बत, ठीक है। सो पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम वी आर ट्राइंग कि हम मूव टुवर्ड्स करें, आगे की तरफ जाएं। सो बट अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट, okay, our next slide is deindustrialization, and this is a very very important topic. Industrialization, now what do you understand from this term? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से ही होगा ना। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसको कोई चीज निगेट कर दे, डी इंडस्ट्री, ठीक है। सो व्हाट इज इट? अ डिक्लाइन इन अ कंट्री सेकेंडरी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रीज आपकी कम हो रही है तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो आपकी सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कम हो रही है तो वो आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, राइट। सो व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज और मूव अब्रॉड, services become more important than manufacturing. अब ये होता क्यों है? Why do factories close और why do they move abroad? क्यों होता है? अब जैसे यूके है, उनके लिए अब मैन्युफैक्चरिंग से वो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सर्विसेज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स भी डिक्रीज हो जाती हैं, फिर आप ज्यादातर आईटी की तरफ जा रहे हो, सर्विस जॉब्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो वो टर्शरी सेक्टर में जा रहा है। मोर जॉब्स इन बैंकिंग, बैंकिंग इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर। हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हो, आईटी की, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। Now let's move on to the next slide. How economies are organized and who makes the economic decisions? अच्छा, अब इकोनॉमीज ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं? अब ये क्लासिफिकेशन, इकोनॉमीज को कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं और डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इट्स बेसिकली हु ओन्स द रिसोर्सेज, हु मेक्स डिसीजंस एंड हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, ठीक है। किसके पास है रिसोर्सेज, डिसीजन कौन लेता है, और रिसोर्सेज कौन सा रिसोर्स कहाँ पे ज्यादा एलोकेट करना है, किस सेक्टर में करना है। तो ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ऑल राइट, सो इकोनॉमिक सिस्टम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट वन इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है?
फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है व्हेन प्राइवेट इंडिविजुअल्स दे ओन द रिसोर्सेज, राइट? प्राइवेट पीपल दे ओन द रिसोर्सेज, द डिसीजंस आर मेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होती है, ठीक है? लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल, सो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट इट, इट इज जब प्राइवेट पार्टी आ जाती है तो फिर उनका मोटिव प्रॉफिट ही होता है, ठीक है? सो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट जब होगा तो फिर मोटिव इज प्रॉफिट। और लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? एडवांटेजेस को प्रोस भी कहते हैं, डिसएडवांटेजेस को कॉन्स भी कहते हैं। एडवांटेजेस जो उसकी अच्छी चीजें होती हैं, उनके फायदे होते हैं, ठीक है? एंड डिसएडवांटेजेस जो इसके नुकसानात होते हैं या कॉन्स, ठीक है? अच्छा, सो फ्री मार्केट इकोनॉमी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या फायदे हैं? जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ जाते हैं मार्केट में तो दे वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर एक रेस्टोरेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने खोला है, उसके साथ दूसरा भी खोल लेगा, उनका एम प्रॉफिट है, सो आपको किस्म किस्म की चीजें मिल रही होती हैं, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है? हर किस्म की चीज आपको मिल जाती है। इट फोकसेस ऑन कंज्यूमर वांट्स। जब एक प्राइवेट पार्टी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो ये देखती है कि अच्छा, हमारे कंज्यूमर का जो लोग है उनको चाहिए क्या है, व्हाट डू दे वांट, डिजायर पे बेस्ड होता है। तो वो उसी तरह का कैफे खोलेंगे या रेस्टोरेंट खोलेंगे या होटल खोलेंगे, ठीक है? बेटर सर्विसेज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो फिर अपनी उससे लगा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सर्विसेज भी आपको बेहतर मिलती है कि उनको प्रॉफिट उनके पास ही जा रहा होता है, राइट? इट इनकरेजेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है? लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई ओपन अप अ ब्रांड, मैं कॉफी शॉप खोलती हूँ, और ऑब्वियसली मेरा मोटिव होगा, आई एम अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है? मेरा मोटिव होगा कि मैं अच्छा सा कॉफी प्लेस खोलूं, और मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को देखूंगी कि अच्छा, मैं किस किस्म का क्राउड चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, जेन जी आए, मिलेनियल्स आए, लाइक बूढ़े लोग आए या यंग पीपल आए, ठीक है? तो मैं उस किस्म का एक कॉफी का एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगी कि जिस किस्म का मुझे क्राउड चाहिए, और मैं उनके कंज्यूमर की वांट्स, जो जो जिन लोगों को मैं टारगेट कर रही हूँ कि ये क्राउड मेरे पास आए, मैं उनकी वांट को जहन में रख के बिजनेस खोलूंगी। उनको जो चीजें पसंद हैं उस तरह की चीजें मैं रखूंगी अपने मेन्यू में। ऑब्वियसली मैं सर्विस भी बेटर दूंगी उनको। एंड इनोवेशन मेरे होगी, इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी होगी। अब मैं दिमाग लड़ाऊंगी, सोचूंगी अच्छा, इस वक्त मार्केट में किस चीज की जरूरत है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सीईओ, आई विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है? आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर, मैं रिस्क लेने को तैयार होंगी। हाँ जी, मार्केट में इस चीज की बहुत ज्यादा डिजायर है, बहुत अ लॉट ऑफ पीपल वांट दिस थिंग, सो आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, ठीक है? तो इनोवेशन भी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी। आपको देखिए, दो तीन और आपके कंपेटिटर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें बढ़ती जाती है, कंपटीशन भी बढ़ता जाता है, इनोवेशन भी आ रही है, वो कुछ और रख लेगा, थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट चीज रख लेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? एक्सपेंसिव है, लेस अफोर्डेबल है। जाहिर बात है कि जब आप प्राइवेट जगह पे जाओगे तो वो उनका तो एम है कि प्रॉफिट, हम सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं तो वो आपसे पैसे भी ज्यादा चार्ज करेंगे। हॉस्पिटल्स देख लें आप, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पे जाते हैं, they charge you more as compared to the government hospitals, ठीक है? So it is less affordable for many people. Risk of monopolies, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली आपने गेम खेली होगी अपने बचपन में, राइट? मोनोपोली होता है कि जब एक ही बिजनेस ओनर या चंद बिजनेस ओनर्स, इंडिविजुअल्स, वो ही सारी मार्केट स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है? किसी और को उसमें नहीं आने देते बिजनेस में। जैसे चंद लोग, फॉर एग्जांपल, शूज का अगर है तो चंद लोगों ने मोनोपोली बना ली है कि अच्छा जी, ये हमारे शूज का है, हमारा ही, जैसे स्टाइलो, ईसीएस, देयर कुड बी सो मेनी अदर शू ब्रांड्स लाइक इंडियोर, ये सारे इन्होंने अपने चंद शू वाले हैं कि हम लोग ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। बट अब इनको भी काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि इन्हीं की मोनोपोली रह गई है चंद लोगों की, लेकिन अब काफी और शूज वाले भी आ रहे हैं। लेकिन फिर इसमें प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में यही होता है ना कि रिस्क है, मोनोपोली ना हो जाए किसी की, और लोग आ ही नहीं सकेंगे, वही दो चार लोग ही उस बिजनेस के ओनर्स होंगे, और वही चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और फिर आगे उन्हीं की जनरेशन आती रहेगी, और कोई नया बंदा मार्केट में उस वाले शूज के एंटर ही नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मोनोपोलीज।
और डिसएडवांटेज एक और बहुत बड़ा है कि ओवर एम्फोसिस ऑन वांट्स। ओवर एम्फोसिस ऑन वांट्स का क्या मतलब है कि अब जब एक प्राइवेट बंदा स्टार्ट करता है, मैं कॉफी शॉप स्टार्ट करती हूँ, तो मैं अपने कंज्यूमर की, जो लोग मैं क्राउड को बुलाना चाह रही हूँ, क्राउड को अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ अपने कॉफी शॉप में, मैं उनकी हर एक वांट को एम्फोसाइज करूंगी, हर एक वांट को देखूंगी कि अच्छा ये उसको ये भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो मैं उसकी वांट्स पे कई दफा मे बी ओवर एम्फोसाइज भी करती हूँ, ठीक है, ओवर उसको प्रायोरिटी दे दूं, या ओवर उसके बारे में वो मैं सोच लूं, उस मुताबिक अपना बिजनेस में क्रिएट कर लूं। ओके, now let's move on to the next slide. So our second type of economy is a planned or command economy. इसको आप पब्लिक सेक्टर भी बोल सकते हो। अब जो पिछली हमने की है फ्री मार्केट का मतलब प्राइवेट, ठीक है, फ्री मार्केट है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल आके कुछ भी खोल सकता है, ठीक है, जो उसको लगे कि अच्छा जी उसके पास पैसे हैं, उसके पास बजट है और उसको लगता है कि ये जो चीज है ये कंज्यूमर को चाहिए और उसकी प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एनीबडी कैन कम, इट्स अ फ्री मार्केट, ठीक है। Now the second type of economy is planned या command economy. This is public sector. इसमें अब क्या होता है? Government owns and controls resources. Government decides what to produce and how much to produce, कितना produce करना है and किसके लिए produce करना है, ठीक है। अपनी जो टारगेट मार्केट है कि किस किस्म के क्राउड के लिए आपने करना है या किस किस्म के लोगों के लिए, तो वो ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। लिटिल और नो प्राइवेट ओनरशिप। अब इसमें ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो प्राइवेट ओनरशिप कहाँ से आएगी, वो प्राइवेट तो आएंगे नहीं इसमें, ठीक है। एंड गवर्नमेंट का क्या फोकस होता है, उनका फोकस यही होता है कि सोशल वेलफेयर हो, ठीक है, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री, लोगों का भला हो जाए, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया में जो है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरीथिंग, सो इट्स अ प्लान, इट्स अ कमांड इकोनॉमी। अच्छा, अब कमांड इकोनॉमी के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट तो सिर्फ ये देखती है कि जी बेसिक नीड्स मीट हो जाएं, ठीक है। अब प्राइवेट में, फ्री इकोनॉमी में, फ्री फ्री मार्केट में हम लोग वांट्स भी देख रहे थे, ठीक है। अगर जैसे मैं बिजनेस में आ रही थी, मैं वांट्स देखती थी। अब गवर्नमेंट तो सिर्फ बेसिक नीड्स देखेगा, आपका वांट्स पे नहीं जाएगा, वो डिजायर्स पे नहीं जाएगा। एंड देर इज अ लिटिल कंट्रोल, बल्कि अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज, बिकॉज होती ही गवर्नमेंट है तो मोनोपोली तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। कुछ चंद इंडिविजुअल्स के नॉट क्रिएट अ मोनोपोली ओवर द कंट्री की जी हमारा ही राज है, हम लोग ही, हम हमारी मोनोपोली है, ठीक है, इस तरह नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट होगी। सर्विसेज एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीजें होती हैं वो सर्विसेज हर कोई अवेल कर सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, हर कोई अवेल कर लेगा, उन्होंने कोटा रखा होता है, अच्छा जी फ्री सर्विसेज का भी होता है। सो इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, इट्स नॉट लाइक देयर इज अ सर्टेन सेक्टर जो इसके पास पैसे हैं सिर्फ वही वो चीज ले सके, या जिस जो अपर क्लास है वही उस कॉफी शॉप को एंजॉय कर सके। जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा उसमें हर सेक्टर का बंदा जा सकता है, इट्स एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर तो बेसिक नीड सिर्फ कर रहा है, तो ऑब्वियसली लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स होगा, बहुत ह्यूज वैरायटी तो होगी नहीं। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, गवर्नमेंट प्रॉफिट को नहीं देखता, वो सोशल वेलफेयर को देखता है, वी टॉक्ड अबाउट इट। लो एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। अब गवर्नमेंट एक चीज जो लग कर रहा है उसमें एफिशिएंसी उस तरह से नहीं होगी, नई क्रिएटिविटी नहीं होगी, अच्छा जी हम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग बैठे होते हैं उनको पता है कि उनकी एक मंथली सैलरी वगैरह फिक्स्ड है, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। हम उनको पता है गवर्नमेंट ने उस तरह से चेक तो करना नहीं है, तो एफिशिएंट उनकी एफिशिएंसी भी फिर गिर जाती है कि अच्छा जी सैलरी भी लग रही है, कोई चेक इन कंट्रोल, चेक इन बैलेंस भी नहीं है, तो चलो जी। तो इस तरह से एफिशिएंसी भी गिरती है, इनोवेशन गिरती है, क्रिएटिविटी नहीं होती। आप कह रहे अच्छा जी चलो जी पैसे तो आ रहे हैं, हमें क्या करना है, हो रहा है, काम चल रहा है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब प्राइवेट में ये होता है कि प्राइवेट में आप इस तरह बैठ नहीं सकते, आपका एम है, आपका अपना बिजनेस है, आपको उसको खुद देखना है, वरना साथ आपके 4 कंपटीटर्स आके बैठ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, now the third type of economic systems, there are 3 types, ठीक है। first one was free market, second was planned या command economy, and third is mixed economy। अब थर्ड में क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड नाम से ही पता लग रहा है,
इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पाकिस्तान की एग्जांपल आप ले लें, इधर प्राइवेट भी हर चीज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी मिलेंगे, स्कूल्स वगैरह, आपको पब्लिक स्कूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, so this is a combination of private and public sector. Some industries controlled by government एंड अदर्स आर यूजुअली बाय प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, इसमें बहुत चंद जो होती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर देखता है, बाकी यूजुअली ज्यादातर प्राइवेट फर्म्स ही होती हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, पाकिस्तान, यूके एंड चाइना। चाइना तो खैर मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री। तो मुझे मुझे जो लगता है ना, जब हम वो कंट्रीज की बात कर रहे थे, डेवलपिंग और डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड में, मुझे सॉर्ट ऑफ लगता है कि डेवलप्ड में ठीक है, यूएसए यूके है, बट चाइना इज वेरी फास्ट, वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहा है। आई थिंक इज गोइंग टू कम अ टाइम दैट मे बी चाइना जो है वो यूएसए का पूरा वो कंपेटिटर उसमें, बल्कि हो ही गया है कंपेटिटर, वो बन गया। आप आईफोन देखिए, आईफोन और चाइना का आप देखें, रेडमी देखें, चाओमी जाओमी जो है वो देखें, उसकी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। सो चाइना इज वेरी बहुत तेजी से वो जो है ना, वो आई थिंक डेवलप्ड की तरफ ही जा रहा है। सो खैर, कमिंग बैक, वो तो हम उसमें बात कर रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग। अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, उसे पाकिस्तान भी है, यूके भी और चाइना भी। चाइना में भी आपके पब्लिक भी है सेक्टर्स और आपका प्राइवेट बिजनेसेस भी। अच्छा जी, मिक्स्ड इकोनॉमी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट्स अ बैलेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज। अच्छा, जो एसेंशियल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट दे देता है, बाकी सब कुछ प्राइवेट कर लेता है। प्राइवेट सेक्टर improves efficiency and growth. So we already talked about it कि प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली जो एम्प्लॉइज हैं या प्राइवेट सेक्टर का सीईओ है, वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा, एफिशिएंसी इनोवेशन लाएगा कि ग्रोथ हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस एफिशिएंसी। अगर गवर्नमेंट, अब आधी चीजें गवर्नमेंट की हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरवीन करता है बाकी चीजों में भी, तो फिर ये है कि आधी चीजें जैसे गवर्नमेंट की है तो उससे एफिशिएंसी फिर रिड्यूस हो जाती है ना। Now, public sector firms may be inefficient. We've already talked about it कि उनकी efficiency जो है वो जरा कम होती है। ये ना आपकी स्लाइड्स जो हैं वो, इसका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। All right, so disadvantages क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि आधे सेक्टर्स पब्लिक हैं आधे प्राइवेट हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट के अंडर है वो ऑब्वियसली वो अपनी चीजों को देखेंगे, इंटरवीन करेंगे, बीच में बोलेंगे कि जी हमारे भी आधे सेक्टर्स हैं, तो फिर एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो जाती है ना। ठीक है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स में भी इनएफिशिएंट, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या, बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक आर्ग्यूमेंट या एक प्रॉब्लम बीच में कि जो प्राइवेट वाले सेक्टर्स वाले होंगे उनका एम होगा प्रॉफिट, जो गवर्नमेंट वाले होंगे उनका होगा सोशल वेलफेयर, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। All right, now we are going to move on to our next very very important topic, which is privatization. ठीक है, प्राइवेट, what do you understand by the term privatization? प्राइवेट को देखें, प्राइवेट से क्या आपको पता लगता है? Now, private is when a government privatization. ठीक है, now, a very important topic, privatization. Now, what does this term mean? Privatization. ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि कोई चीज प्राइवेट हो जाए। ठीक है, now privatization is when a government owned business is sold to private individuals. एक गवर्नमेंट का बिजनेस था, जब वो सेल कर देते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, वो प्राइवेट बन जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं या हो रहे हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। फॉर एग्जांपल पीआईए, आपकी जो एयरलाइन है, ठीक है,
discussion of privatization plans in recent years कि इसको प्राइवेट कर देते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. पाकिस्तान स्टील मिल्स often discussed for privatization due to losses. इतने losses हो रहे हैं कि a lot of individuals have come up कि हम इसको खरीद लेते हैं, हम इसको efficient बनाएंगे, हमें profit भी होगा, तो इसको हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इसको प्राइवेट बना दें. So a lot of discussion going on, right? Why governments privatize? क्यों करते हैं प्राइवेटाइज? गवर्नमेंट क्यों करती है? कई दफा आप गवर्नमेंट के पास इतने बजट ही नहीं होता, पैसे ही नहीं होते टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस. पहले ही इतने एक्सपेंसेस होते हैं. टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इसलिए हम प्राइवेटाइज करते हैं. तो इंक्रीज कंपटीशन ऑल्सो, कि प्राइवेट हो जाएगा तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और लोग आ जाएंगे इस बिजनेस में. एंड टू रेज मनी फॉर द गवर्नमेंट. प्राइवेट में जो है आप सर्विसेज अच्छी दोगे तो गवर्नमेंट के लिए पैसे भी आ जाएंगे, उसको कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जब ओन करेंगे पैसा भी आएगा. ऑल राइट, नाउ थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी क्या एडवांटेजेस हैं कि प्राइवेट के तो हमने पहले डिस्कस किया. प्रॉफिट ड्रिवन मैनेजमेंट, ठीक है, देयर एम इज प्रॉफिट. मैनेजमेंट का एम प्रॉफिट होता है. एफिशिएंट सर्विसेज हो जाएंगी आपके पास ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स हो जाएंगी, ज्यादा गुड्स आ जाएंगी, ठीक है. मार्केट आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगा, ज्यादा गुड्स आती जाएंगी. यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, इनोवेशन होगी. डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली जब एक प्राइवेट बंदा आता है तो प्राइस भी उसने जितना पैसा लगाया होता है वो फिर चाहता है कि मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं कमाऊं, इससे ज्यादा. तो ऑब्वियसली हर चीज की प्राइस भी ज्यादा होती है, हायर प्राइसेस. पॉसिबल जॉब लॉसेस ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग. अब एक कंपनी जो प्राइवेट होती है तो हो सकता है जो पहले वाले लोग थे उनकी जॉब दे लूज देयर जॉब, क्योंकि अब प्राइवेट होगी. हो सकता है वो लोग रिक्वायर्ड ना हो, वो अपनी टीम को साथ लेके आए. सो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट के जो थे लोग वो निकाले भी जाते हैं, ले ऑफ भी किए जाते हैं. और उनको कई दफा मे बी वो पुराने लोग हों, उनको टेक्नोलॉजी यूज ही ना करनी आती हो. सो पॉसिबल जॉब लॉसेस ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग मतलब दोबारा से जब प्राइवेट होता है कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट से प्राइवेट होती है तो वो रीस्ट्रक्चर होती है. रिस्क ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज. प्राइवेट मोनोपोलीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. मोनोपोली के फ्यू इंडिविजुअल्स, दो चार बंदों की ही मोनोपोली ना बन जाए, कोई और उस बिजनेस में आ ही ना सके. देयर इज अ रिस्क प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है. फिर लेस फोकस ऑन सोशल वेलफेयर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. उनका मोटिव प्राइवेट इंडिविजुअल्स का सोशल वेलफेयर नहीं होता, उनका प्रॉफिट होता है. As I told you earlier कि privatization is a very very important topic. तो उसके साथ nationalization भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है. Government takes control of a private business and runs them as public sector. अब ये उसका opposite है, उसका inverse है. Privatization तो बहुत important है, ठीक है. Privatization में government से owned business जो है वो private हो जाता है. They sell it to government, sells its business to private individuals. Nationalization में अब इसका opposite है. अब एक प्राइवेट बिजनेस को गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है और इसको एज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है. फॉर एग्जांपल बैंक्स और इंडस्ट्रीज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. हिस्ट्री में हमने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं. पहले पहले बैंक्स 1974 में, बिफोर यू एंड आई वर बोर्न, क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए थे मेजर प्राइवेट बैंक्स टू ब्रिंग द बैंकिंग सिस्टम अंडर स्टेट कंट्रोल, ठीक है. जो प्राइवेट बैंक्स थे उसने गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया था, सो दैट वो सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल, वो बैंक्स को वो कंट्रोल कर सके. अच्छा जी, नेशनलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. गवर्नमेंट कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट सर्विसेज आर प्रोटेक्टेड फॉर पीपल, ठीक है. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडस्ट्रीज, सर्विसेज आर प्रोटेक्टेड फॉर पीपल, इट्स फॉर द सोशल वेलफेयर. प्रॉफिट्स आर यूज्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट. इनको कोई प्रॉफिट मिलता भी है तो पब्लिक पे लगा देते हैं, ठीक है. पब्लिक की बेनिफिट के लिए, उनकी फायदे के लिए वो लगा देते हैं. एंड इट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट ओनर्स, ठीक है. प्राइवेट ओनर्स फिर बीच में नहीं आते, वो नहीं ज्यादा उसमें बोलचाल कर सकते या इंटरवीन नहीं कर सकते. डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं ना साथ साथ आपकी ये स्लाइड्स ठीक कर दूं. ओके, डिसएडवांटेजेस, इट कैन बी लेस एफिशिएंट ड्यू टू नो कंपटीशन, ठीक है. गवर्नमेंट ही है तो कोई कंपटीशन तो है नहीं. इंक्रीजेस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट. वर्कर्स में हैव लेस मोटिवेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. मैंने आपको इसकी भी एग्जांपल दी है पीछे. ये वर्कर्स, आपकी एक सैलरी आ रही है,
आपको गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही, तो आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आप क्यों इम्प्रूव करोगे परफॉर्मेंस जब आपको पता है जी पैसे आ रहे हैं, किसी ने चेक ही नहीं करना, जी काम चल रहा है। ठीक है, डिसीजंस में भी अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स। अब गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन जो हैं वो पॉलिटिकल, उस वक्त स्टेबिलिटी है कि इंस्टेबिलिटी है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, प्राइवेट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर तो इफेक्ट होता है ना, जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो कंट्री में। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, चलिए जी, ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप। So economies have three sectors, ठीक है, I told you based on the activity किस टाइप की क्या होता है उसमें, primary, secondary, tertiary, ठीक है, based on activity. Countries are classified as developed, developing or less developed based on their income and living standards. ठीक है, countries किस तरह से classify की जा सकती हैं, developed में, developing में, या developed में। developed economy होगी तो आपकी developed country होगी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दी सेक्टर्स। किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपने देखनी है, अगर ये सेक्टर्स के अच्छे होंगे तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। नाउ इकोनॉमीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्री मार्केट, प्लान एंड मिक्स सिस्टम्स। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है फ्री मार्केट क्या होती है, प्राइवेट प्लान क्या होती है, पब्लिक पब्लिक सेक्टर, मिक्स सिस्टम्स क्या होती है जिसमें दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके बिजनेसेस चला रहे होती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमीज इंक्लूड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मिक्स्ड का मैंने आपको भी बताया। नाउ गवर्नमेंट्स में यूज प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन टू मैनेज ओनरशिप एंड एफिशिएंसी। ये भी आपने पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन व्हेन गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस इज टर्न इनटू प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल कर देते हैं। और नेशनलाइजेशन इसका ऑपोजिट है कि अगर कोई प्राइवेट बिजनेस चला रहा है तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, तो नेशनलाइजेशन हो जाती है। Now, overall economies are shaped by production, ठीक है, उनकी development कैसे होती है, control कैसे होती है। So, thank you. If you have any questions or queries, you can contact us, and please do subscribe to Abil School of ONA Level. This is Eliza Heather. Thank you so much.